This is our 11th lecture, and in this lecture we will learn about friend function, friend class and constructor. In this session, in detail we will see how to create a friend function and what is the purpose of it, what is the friend function and how will you create the friend class, and we will see the characteristics of constructor and what are the types of constructor, that are the default, parameterized and constructor. First of all, we will see friend function. Now, in a friend function, why friend function? Okay, function which is not a member function of a class cannot access the private data member and protected data member of a class just because of data hiding. And due to this restriction, it may force programmer to write a long and complex codes. That means create a function which will actually you declare into the class, but that is not the member function of that class. Okay, so how to write that and how to use that we will see with the practical. Okay, this is the mechanism built in C++ programming to access private and protected data member from non-member function, that is friend function. If the function is defined as a friend function, then the private and protected data of a class can be accessed using the function. Here you can see that syntax is whatever you write with the function. फंक्शन जब क्रिएट करते हो उस टाइम पे आप जैसे लिखते हो ना, जैसे रिटर्न टाइप है, फंक्शन नेम है एंड व्हाट आर द पैरामीटर लिस्ट. Okay, so before that you need to mention the friend keyword. Okay, अगर friend keyword लिखा है, that means this function is not a member function of this class, but this function can access the private and protected data member of this class. Okay, so the prototype of friend function is written within the class declaration. It can be anywhere inside class, either in private or public section. आप पब्लिक सेक्शन में भी लिख सकते हो और प्राइवेट सेक्शन में भी ये फ्रेंड फंक्शन बना सकते हो. The definition of friend function is defined outside the class scope, but it has the right to access all the protected and private members of the class. The compiler knows a given function is friend function by the use of keyword friend, that I have already told you in the previous slide. Means if you want to create a non-member function of a class as a friend, so as a prefix of a function declaration you need to use friend keyword. आपको friend keyword use करना है जब function का declaration जब करते हो class के अंदर उस time पे. Even though the prototypes for the friend function appears in the class definition, friends are not member functions. That means जितने भी friend function है class के अंदर वो class के actual member functions नहीं है. ठीक है? So we'll see with the example. Using the namespace, then we have created one class box. Okay, and in this box class there are one private data member, that is length. Okay, and one public member function is set length. Okay, set length is basically for assigning a value to the data member length. Now here you can see that friend int print length box. Okay, so यहाँ पे एक parameter print length is your function which returns type is integer and parameter is of type box. Okay, and this function is known as friend function because before the function return type I have added friend keyword. Here you can see the set length statement body. Okay, whatever you pass, that a, what value of a will be assigned to the length. Now here you can see this int print length बॉक्स बी. देखो यहाँ पे प्रिंट लेंथ लिखा है, उसके आगे ये कौन से क्लास से है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज अ नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ दिस क्लास. ओके, बिकॉज इट्स अ फ्रेंड फंक्शन. तो उसके अंदर जो बॉक्स बी का ऑब्जेक्ट आया है तो बी डॉट लेंथ की जो भी वैल्यू होगी उसमें वो 10 ऐड कर देगा, 10 ऐड कर देगा और बी डॉट लेंथ जो है वो रिटर्न कर देगा. ठीक है, तो यहाँ पे जब भी डेफिनेशन लिखते हो फ्रेंड फंक्शन की तो उसके आगे क्लास कॉलन कॉलन करके लिखने की जरूरत नहीं है. देखो यहाँ पे इंट मेन में क्या किया है, बॉक्स बी
बी डॉट सेट लेंथ 20। तो अभी बॉक्स बी एक ऑब्जेक्ट बनाया, बी डॉट सेट लेंथ किया, उसके अंदर 20 सेंड किया, तो सेट लेंथ मेथड विल बी कॉल्ड। तो जो भी 20 गया वो ए में जाएगा, और ए की ए से हम वो 20 को किसको असाइन कर रहे हैं, लेंथ को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। देन सी आउट लेंथ ऑफ द बॉक्स, प्रिंट एल एन बी, बी का जो भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बी डॉट प्रिंट एल एन नहीं लिख सकते, ठीक है। प्रिंट लेंथ फंक्शन जो है वो क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं हो सकता है, वो नॉर्मल फंक्शन कैसे कॉल होता है वैसे ही कॉल होगा यहाँ पर, इसीलिए हमने ब्रैकेट में बॉक्स का ऑब्जेक्ट जो बी बनाया है वो पास कर दिया। जैसे ही पास किया तो बी डॉट लेंथ क्या था, 20 था, तो 20 प्लस 10 30 हुआ, तो विद दिस आउटपुट विल बी द लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 30, ठीक है। सो आई विल शो यू दी डेमो। Here you can see the same practical। देखो यहाँ पे सेट लेंथ में बॉक्स कॉलन कॉलन लिखा है, ठीक है, उसकी जब डेफिनेशन लिखते हैं उस टाइम पे, लेकिन प्रिंट एलन के आगे देखो बॉक्स कॉलन कॉलन नहीं लिखा है, बिकॉज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट लेंथ एंड प्रिंट लेंथ। सेट लेंथ इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास एंड प्रिंट लेंथ इज द friend function of this class, and friend function is not a member function of a box class। So first of all we will compile this, build and execute। देखो यहाँ पे आउटपुट लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 30, ठीक है। मैं यहाँ पर चेंज कर दूं, 10 के बदले 20 कर दूं, ठीक है। तो कितना ऐड करेगा, एवरी टाइम 20 ऐड करेगा, और सेट लेंथ में मैंने 25 दिया, तो क्या आउटपुट देगा, इट विल गिव यू आउटपुट 45। Look at this, okay। Now so this is all about friend function, fine। अभी फ्रेंड फंक्शन जो है, अभी उसमें दो क्लासेस में फ्रेंड फंक्शन कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दो क्लास के अंदर फ्रेंड फंक्शन रहकर एक दूसरे के प्राइवेट डेटा मेंबर कैसे एक्सेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्लास ए बनाया है, उसमें इंटीजर x पब्लिक सेट डेटा x की वैल्यू i से इनिशियलाइज की, सेम वे क्लास b डेटा मेंबर इज x, सेट डेटा x इज इक्वल टू i के, दोनों के डिफरेंट क्लास है, क्लास a एंड b, ठीक है। अभी क्लास b को अगर क्लास a का प्राइवेट डेटा मेंबर एक्सेस करना है तो विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन दे कैन डू, ओके। सो हाउ, देखो यहाँ पे दोनों के अंदर देखो मैंने क्या डिक्लेयर किया है, वॉइड मीन करके फंक्शन लिया, दोनों के पैरामीटर्स कौन से टाइप के हैं, ए एंड बी, ए एंड बी यानी क्लास ए एंड क्लास बी टाइप के दो ऑब्जेक्ट्स जाएंगे, ठीक है, और दोनों फ्रेंड फंक्शन है, ठीक है। सो अभी मीन फंक्शन जो बना है, तो वो मीन फंक्शन के अंदर आप x की वैल्यू जो है क्लास ए का x और क्लास बी का x जो है प्राइवेट, जो कोई फंक्शन ऐड एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई नॉन मेंबर फंक्शन क्लास का एक्सेस नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मीन जो है वो नॉन मेंबर फंक्शन है क्लास का, बिकॉज इट्स अ फ्रेंड टाइप। सो इस फंक्शन के थ्रू आप दोनों क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। So before writing the declaration of class B, I have declared one class B that I will discuss you in the later sessions। Here you can see, देखो यहाँ पे void main जो है, void main के आगे कोई भी क्लास का वहां पे लेबल नहीं लगाया है, बिकॉज इट्स अ नॉन मेंबर फंक्शन। ये जो फंक्शन है दोनों क्लास में बिलोंग नहीं करता है, लेकिन दोनों क्लास को एक दूसरे की प्राइवेट वैल्यूज, प्राइवेट डेटा मेंबर्स एक्सेस करने हैं, इसीलिए इस फंक्शन को एज अ फ्रेंड दोनों क्लास में डिक्लेयर किया है हमने, और उसका जो स्टेटमेंट बॉडी है वो दोनों क्लास के बाहर ही लिखा जाएगा और क्लास लेबल नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या किया, क्लास ए क्लास बी, दोनों के ऑब्जेक्ट ए और बी, स्मॉल ए बी इज दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास ए एंड बी। तो देखो यहाँ पे a डॉट एक्स लेस देन इक्वल टू b डॉट एक्स, तो अगर ट्रू है कंडीशन तो a में जो x है उसका वैल्यू आएगा, अगर फॉल्स है तो b में जो x का वैल्यू है वो रिटर्न होगा, प्रिंट होगा। तो देखो यहाँ पे इंट मेन के अंदर दोनों के ऑब्जेक्ट्स बनाए, दोनों के सेट डेटा से मैंने क्या वैल्यू असाइन किया,
ए क्लास जो है, ऑब्जेक्ट स्मॉल ए जो है उसमें x का वैल्यू 10 होगा और ऑब्जेक्ट बी जो स्मॉल बी है उसमें x का वैल्यू 20 होगा और मैंने min a कॉमा बी पास करके कॉल किया तो ये क्या प्रिंट करेगा, इट विल डिस्प्ले मिनिमम डिस्प्ले करना है तो इट विल डिस्प्ले a ऑन टू द स्क्रीन. Clear? So the basic difference is min is a function और मीन को दोनों क्लास ए एंड बी के जो प्राइवेट डेटा मेंबर है उसको एक्सेस करना है. ठीक है, अगर उसको एक्सेस करना है तो उसके क्लास के अंदर ही लिखना पड़ेगा लेकिन दोनों को एक दूसरे के यूज करने हैं प्राइवेट डेटा मेंबर. सो हमने एक कॉमन फंक्शन बना दिया मीन और उन दोनों को बोल दिया ये एक दूसरे के फ्रेंड है सो दैट टू फ्रेंड्स कैन एक्सेस दी देयर ईच अदर्स प्राइवेट डेटा मेंबर. ओके, दिस इज द यूज ऑफ फ्रेंड फंक्शन. तो इसको मैं रन करके दिखाती हूँ आपको. देखो यहाँ पर सेम मैंने दिया है. ठीक है, हम इसको कंपाइल, रन, एग्जीक्यूट. देखो 10 आया. अभी दोनों की वैल्यू में चेंज कर देती हूँ. यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 100. तो अभी मिनिमम कौन आएगा, 20. So this is the practical which you need to perform at your own. Okay. See आउटपुट में लिखा है in this example main function is friendly to two classes. अभी दोनों क्लास का वो फ्रेंड फंक्शन है. पहला वाला एग्जाम्पल जो था उसमें एक ही था प्रिंट लेंथ, वो उसी क्लास का फ्रेंड फंक्शन था. यहाँ पर मेन फंक्शन जो है वो दोनों का फ्रेंड फंक्शन है सो दैट मेन कैन एक्सेस private data member, protected data member of both the classes into this function. Okay, and the very much clear thing is friend function is a non-member function of class. Simply you just have to declare it within the class to say that this function have a rights to access the private data member of that class. Okay, और उसका जो definition है वो आपको उसके बाहर लिखना है. So what are the characteristics of friend function? The function is not in the scope of the class to which it has been declared as a friend. That means उसके स्कोप में सिर्फ उसका डिक्लेरेशन ही आएगा. एक्चुअल में वो तो नॉन मेंबर फंक्शन है क्लास का. It cannot be called using the object as it is not in the scope of that class. तो print length भी था, min भी जो हमने देखा टू क्लास वाला, उसमें भी दोनों को कॉल कैसे किया था, डायरेक्टली फंक्शन नेम से ही कॉल किया, कोई ऑब्जेक्ट रेफर नहीं किया था हमने, बिकॉज दैट फंक्शन इज नॉट बाइंडेड टू एनी पर्टिकुलर क्लास. ओके, it can be invoked like a normal function without using the object that I already mentioned you. It cannot access the member names directly and has to use an object name and dot members operator with the member name. यानी member names जो है वो सब इसके ऑब्जेक्ट का जो बनाकर काम करते हैं वो फंक्शन के साथ ऐसे यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. It can be declared either in the private or the public part. Okay. So next is the friend class can access both private and protected data members of the class in which it has been declared as a friend. यहाँ पे देखो फ्रेंड क्लास बनाया है. अभी क्या है कि friend class can access both the private and protected members of the class in which it has been declared as a friend. यानी अभी क्या है, अब तक हम प्राइवेट डेटा मेंबर की ही बात कर रहे थे, अभी तो डेटा मेंबर के अलावा मेंबर फंक्शन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. देखो क्लास ए के लिए फ्रेंड क्लास कौन सा है, क्लास बी है. ठीक है, देन सेट एक्स की वैल्यू सेट की एंड डिस्प्ले ए के अंदर a डॉट एक्स की है. देखो यहाँ पर क्लास बी के अंदर डिस्प्ले में देखो a डॉट एक्स क्यों पॉसिबल है, a डॉट एक्स क्यों पॉसिबल है, बाकी की तो x इज अ प्राइवेट और a डॉट एक्स तो हम लिख ही नहीं सकते हैं, लेकिन क्लास a में बोल दिया है कि क्लास b मेरा फ्रेंड है, तो मेरे जितने भी प्राइवेट है डेटा मेंबर्स that are directly accessed with the help of object of that class. So a dot x is possible
because I have mentioned friend class B as a data member in class A. Okay. तो यहाँ पर इंट मेन में देखो ए एक ऑब्जेक्ट बनाया, ए डॉट सेट एक्स करके 10 किया, बी का ऑब्जेक्ट बनाया स्मॉल बी एंड बी डॉट डिस्प्ले करके ए को पास किया। ए को पास किया जैसे ही तो डिस्प्ले फंक्शन में ए का जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट आएगा उसके थ्रू ए डॉट एक्स हम कर सकते हैं। अगर हमने क्लास ए के अंदर फ्रेंड क्लास बी नहीं लिखा है तो हम यहाँ पर ए डॉट एक्स जो लिखा है डिस्प्ले फंक्शन में क्लास बी में वो हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, सो इट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज 10. Class B is declared as a friend inside the class A. Therefore, B is a friend of class A. So, class B can access the private members of class A. ठीक है, पहले फ्रेंड फंक्शन में क्या था, अलग से फंक्शन दोनों में लिख के दोनों के प्राइवेट डेटा मेंबर हम यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे नीड कैसी है, क्लास के जो दूसरे फंक्शंस है वो दूसरे क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर एक्सेस करना चाहते हैं। ओके, क्लास के मेंबर फंक्शन जो है वो दूसरे क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर अगर यूज करना चाहते हैं, फॉर दैट यू नीड टू यूज फ्रेंड क्लास। तो यहाँ पे मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ पर नहीं, ये वाला नहीं, मैं कॉपी कर लेती हूँ। प्लस friend class ex.cpp, select the folder and then save this. Okay, देखो सेम चीज यहाँ पर लिखी है। अगर मैं अभी फिलहाल मैंने ये लिखा है और इसका हम आउटपुट देखते हैं। देखो 10 आया वैल्यू। अभी मैं इसको कमेंट कर दूं, इफ आई ट्राई टू कंपाइल, देखो यहाँ पर देखो बी क्लास के अंदर ए डॉट एक्स हम नहीं लिख सकते बिकॉज दोनों एक दूसरे को जानते नहीं। क्लास ए इज डिफरेंट, क्लास बी इज डिफरेंट, और दोनों के प्राइवेट डेटा मेंबर है तो उसी के मेंबर फंक्शन उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्लास ए को बोल दिया कि क्लास बी जो है वो क्लास ए का फ्रेंड है। ठीक है, तो वो जो फ्रेंड है दैट मीन्स क्लास बी कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा मेंबर of class A within the member function of class B itself. Okay? तो मैंने वापस अनकमेंट किया, कंपाइल किया, देखो कोई एरर नहीं है, बिल्ड एंड एग्जीक्यूट हो गया इतना। अगर वैल्यू चेंज करती हूँ मैं, यहां से 100 किया मैंने वैल्यू, देखो 100 आया। ठीक है, सो जैसे सेट एक्स होगा तो फ्लो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर ये वाले फंक्शन पे आएगा। ठीक है, और जैसे ही बी डॉट डिस्प्ले ए है तो ए का जब भी प्रॉपर्टी सेट हुआ, ए का ऑब्जेक्ट यहाँ से पास होगा, कैच कौन करेगा यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन में कैपिटल ए एम्परसेंट ए, और यहाँ पे ए डॉट एक्स से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फ्रेंड क्लास। So friend function and friend class both are the important topics and this can be asked. Okay, so do it properly with practical. So the next thing is constructor. तो यहाँ पर मैंने देखो दो स्क्वायर बॉक्स में क्लास ए बना के रखा है और पब्लिकली एक्स और पब्लिक आई ऐसे करके डेटा मेंबर वहां पे डिस्प्ले करवाए। What do you mean by constructor? The constructor is a special member function whose task is to initialize the objects of its class. Means आप जब भी अभी तक तो क्या करते थे, जैसे x की वैल्यू सेट करनी है तो set x get x, यानी जो डेटा मेंबर है क्लास की उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए अलग से मेंबर फंक्शन लिखते थे आप।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन है, उसका टास्क क्या है, सिर्फ इनिशियलाइज करने हैं ऑब्जेक्ट्स को, क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे और उसके थ्रू उसके जो डेटा मेंबर्स होंगे उसकी वैल्यूज को वो इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। इट इज अ स्पेशल बिकॉज इट्स नेम इज द सेम एज द क्लास नेम। देखो यहाँ पर क्लास ए के अंदर मैंने देखो ए करके राउंड ब्रैकेट्स दिए और कर्ली ब्रैकेट्स दे दिया, ठीक है। तो ए का कोई रिटर्न टाइप मैंने नहीं दिया है। ए का नाम कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, ए, बिकॉज नेम ऑफ क्लास इज ए। दैट मीन्स नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सेम एज द नेम ऑफ द क्लास। द कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड, कब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। द कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेन एवर an object of its associated class is created। अगर मैं क्लास A का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर इसका जो ये कंस्ट्रक्टर दिख रहा है ना A विदाउट एनी पैरामीटर वो कॉल हो जाएगा, ओके। इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यूज ऑफ डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। यानी क्यों, क्योंकि जो डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू को वो सेट करता है, इनिशियलाइज करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। While defining a constructor, you must remember that the name of the constructor will be the same as the name of the class and constructor will never have a return type. Means constructor जो है उसका नाम क्या होना चाहिए, क्लास का नाम ही होना चाहिए, प्लस कंस्ट्रक्टर कभी कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो कंस्ट्रक्टर के नाम के आगे ना वॉइड लिखना है ना कुछ लिखना है, ठीक है। Constructor can be defined either inside the class definition or outside the class definition using the class name and scope resolution operator। यानी कंस्ट्रक्टर जो है उसका स्टेटमेंट्स जो लिखना है, स्टेटमेंट डेफिनेशन लिखना है, वो क्लास के अंदर भी लिख सकते हो और क्लास के बाहर लिखना है तो कंस्ट्रक्टर के नाम के आगे लेबल देना पड़ेगा, ये कौन से क्लास का कंस्ट्रक्टर है, फॉलोड बाय दी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, कॉलन कॉलन। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो पहला वाला ऊपर वाला जो एग्जांपल है उसमें क्या किया है, कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर का जो स्टेटमेंट बॉडी है वो क्लास के अंदर ही डिफाइन किया, यानी इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। और दूसरा एग्जांपल जो दिया है उसके अंदर कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया ए राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन और उसका डेफिनेशन कहाँ लिखा है, क्लास के बाहर, आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। तो उसके आगे क्या लिखा, ए कॉलन कॉलन ए, ठीक है। और उसके अंदर जो भी वैल्यू आपको इनिशियलाइज करनी है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर का डेमो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्लास एक बनाया है कंस्ट्रक्टर डेमो और दो डेटा मेंबर दिए हैं, इंटीजर टाइप नम एंड कैरेक्टर ch, ठीक है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डेमो इनसाइड द क्लास डेफिनेशन ही हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है और इनिशियलाइजेशन भी किया है। तो कंस्ट्रक्टर डेमो देखो नाम सेम है क्लास के जैसा, कोई रिटर्न टाइप नहीं है और नाम इज इक्वल टू 100 किया और ch इज इक्वल टू a किया। और फिर उसके बाद क्या किया, इंट मेन के अंदर कंस्ट्रक्टर डेमो का ऑब्जेक्ट बनाया obj एंड obj डॉट नम प्रिंट किया और obj डॉट ch प्रिंट किया, जो आउटपुट में नीचे दिखाई दे रहा है। दोनों ऑब्जेक्ट के नाम से मेन में एक्सेसिबल है बिकॉज बोथ द डेटा मेंबर्स आर पब्लिक। So I'll show you the execution of this. Constructor copy, ठीक है। चलो कोई खोल के देख लेते हैं, न्यू से देखो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल में constructor.cpp सेव किया, ठीक है। देखो सेम लिखा है हमने कोड, कंपाइल बिल्ड एंड एग्जीक्यूट, देखो आ गया स्क्रीन पे आउटपुट, राइट। यहाँ पर देखो हमने ऑब्जेक्ट जब बनाया है तो नम और ch की वैल्यू नहीं दी है,
वो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के टाइम पे हमने जो सेट किया है वही है। तो यहाँ पे 10 कर दूं और यहाँ पे b कर दूं, तो इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, नम और ch की, नम की 10 और ch की b। देखो आया आउटपुट।